الیکشنز کا دور دورہ ہے، الیکشن کیمپین اپنے عروج پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی اور سب سے تگڑی کیمپین اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آغاز کیا، لیکن ابھی اس نے اس طرح اس چیز کو پیس اپ نہیں کیا، لیکن سب سے بڑی کیمپین اب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہی چلا سکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا منشور اور 10 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور کے اوپر عوام اعتبار کیوں کریں، یا کیا ایسا نیا ہے کہ عوام کو کچھ مختلف ملنے جا رہا ہے اس دفعہ؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اور پاکستان کی سیاست کی ایک کروڈ ریالٹی ہے، ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بلاول صاحب بہت شکریہ، ویری وارم ویلکم ٹو یو، اور آپ نے وقت دیا۔ آئی انڈرسٹینڈ یو آر ان اے اسپن اور آپ الیکشن کیمپین میں ہیں، اینڈ ٹوڈے یو آر ان کوٹ ادو، تو آئی انڈرسٹینڈ آپ کے پاس وقت بڑا کم ہے، بٹ آئی اپریشیٹ آپ نے وقت دیا، ویری کائنڈ آف یو۔ تھینک یو۔ بلال صاحب، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، کیونکہ آپ کے منشور کے اندر 10 نکاتی ایجنڈا ہے، نیچرلی it seems like a very ambitious project, if I would say that, but لوگوں کو ظاہری بات ہے آپ میں شہید بی بی کا ریفلیکشن نظر آتا ہے، یو آر دا فیس آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ ایک سوال جو کہ آپ کا ووٹر بھی آپ سے پوچھتا ہے، یہی سمجھیے کہ آپ کا ووٹر ہی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں سب کچھ ڈالا گیا ہے، لیکن یہ وعدے تو اس سے ملے جلے وعدے تمام سیاسی جماعتیں کر لیتی ہیں الیکشن سے پہلے، لوگ بلاول بھٹو زرداری پر اس دفعہ اعتماد کیوں کریں؟ سب سے پہلے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اوبیسلی اس الیکشن میں ہمارا منشور ہے، میرا عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، مگر ہر الیکشن میں جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا منشور میں وعدے کیے اس پہ عمل درآمد ہم نے کر کے دکھائے۔ جیسے پچھلے الیکشن میں 2008 سے لے کر 13 تک جو بھی ہمارے منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدے کیے، تقریباً 90% ہم نے ان پہ عمل درآمد کیے۔ اس دفعہ جو میں منشور لے کر آیا ہوں، میں نے جو پاکستان کے عوام کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، نمبر 1 مہنگائی، نمبر 2 بے روزگاری، نمبر 3 غربت، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا ایجنڈا دیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں، کہ ان حالات میں جو ہمارا پسماندہ طبقات ہے، جو ہمارا عام آدمی ہے، ان کو ہم ریلیف بھی دلوا سکیں، اور وہ جو مشکل فیصلے ہیں جو ہم نے وفاقی حکومت میں آ کے لینے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی طریقہ کار کو بہتر کرنا ہے، وہ تمام باتیں اس منشور میں موجود ہیں۔ باقی جماعتیں بالکل بہت سے وعدے کرتے ہوں گے، لیکن پاکستان کے عوام جو بھی وہ سمجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، اتنا وہ جانتے ہیں کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ جب صدر زرداری نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کیا، تو ہم پہ یہی نون لیگ اور یہی پی ٹی آئی تنقید ہم پہ کرتے تھے اس منصوبے کے بارے میں، مگر آج وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور چاہے وہ ایجپٹ ہو یا ایشین پیسیفک کنٹریز ہوں، وہ ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک ماڈل کے طور پہ استعمال کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جب صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ویژن دیا اور چائنا کے دورے کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہمارے نون لیگ کے دوست ہمیں تنقید کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا صدر کیا کر رہا ہے، اتنا بار وہ چین جا رہا ہے۔ مگر جب سیک پیک کو عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا، تب لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں صدر زرداری اتنا محنت کر رہا تھا۔ ویسے ہی جو ہم منصوبے یا جو ہم 10 نکاتی ایجنڈا میں پاکستان کے عوام سے وعدے کر رہے ہیں، ہم اس لیے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کہ سب سے بڑا معاشی بحران جو اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس قسم کے ریفارمز کروانے کی ضروری ہے، جیسے کہ ہمارا وفاق میں جو وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں، مگر آج تک ڈیوالو نہیں ہوئے، وہ سالانہ 300 ارب روپیہ ان وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ہم اشرافیہ کو جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ سالانہ
1500 अरब रुपया हम सब्सिडीज़ की सूरत में हमारा अशराफिया को, हमारा एनर्जी सेक्टर को, हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर को ये सब्सिडीज़ दिलवाते हैं। मेरा प्रपोजल ये है कि हम वो 17 मिनिस्ट्रीज़ को बंद करें, वो अशराफिया के लिए सब्सिडीज़ को बंद करें और वही पैसा अपने पसमानदा तबका को, गरीब लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू, यूथ कार्ड के थ्रू, मजदूर कार्ड के थ्रू हम उस पैसा को बॉटम ऑफ द पिरामिड पे खर्च किया जाए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है मईशत के बारे में, हमारा सोच ये है कि व्हेन यू टेक अ बॉटम अप अप्रोच कि आप आम आदमी को सपोर्ट करें तो वो मईशत को ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है और उसी तरीके से मईशत तरक्की भी कर सकता है। अगर हमने ये मुश्किल फ़ैसले लेने हैं इस्लामाबाद में तो साथ साथ हमने अपने अवाम को एक स्टेक दिलवाना है अपना मईशत में, अपना हुकूमत में, अपना रियासत में। और मैं समझता हूँ मेरा जो 10 नकाती एजेंडा है वो ये काम करता है। बट बिलावल साहब एक इशू है, ज़ाहिर बात है कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी जमात के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। आई हैव हर्ड यू रिसेंटली सेइंग कि IMF कोई हथौड़ा लेके खड़ा नहीं होता। ज़ाहिर बात है दे आस्क फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। हमारी मईशत के अंदर जो भी टारगेट्स आपने रखे हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करनी है या 30 लाख घर बनाने हैं, सवाल ये है टारगेट्स तो अच्छे हो सकते हैं बट क्या ये फिस्कल डिसिप्लिन इतनी जल्दी आ सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बिल्कुल वी आर रियली रनिंग ऑन द एज, आप एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर है कि जितना ज़रूरी आज है कि हम ये अशराफिया के सब्सिडीज़ बंद करें, ये वजारतें बंद करें, शायद माजी में इतना ज़रूरी नहीं था। It's not a question of where will I spend the money. The question is that why आज तक क्यों ये 17 वजारतें चल रही हैं जबकि उनको 2015 में आपके आइन के मुताबिक बंद होके डिवॉल्व होने थे। वही IMF जिसके साथ आप ये डायलॉग करते हैं उनको अगर आप ये बात बताएं कि मैं अशराफिया का ये 1500 अरब सालाना जो हम खर्च करते हैं उनके सब्सिडीज़ में हम उनको बंद करके गरीब आदमी को दे रहे हैं, आम आदमी को दे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF आपकी मुखालफत इस बात पे करेंगे। मसला सिर्फ इतना है कि हम एक स्टेटस को सोच में हमारा जो इस्लामाबाद में एक सोच रहता है दैट इज़ वेरी स्टेटस को, वो एक ही तरीका से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं and that's become non-viable now. Right. The people of Pakistan are facing great difficulty. We need to show that the government of Pakistan stands with them and we don't want to take these difficult decisions because the IMF is telling us to do so. We want to take difficult decisions so we can provide relief to our people. अच्छा बट हमारे सियासतदान हैं, हमने अपने अवाम के मुतालबात को पूरा करना है, अपने अवाम की मुश्किल मसाइल का काम करना है। मैं भी ये कर सकता था कि मैं कोई मंशूर पेश नहीं करता, मैं बस कहता मुझे बनाओ आपका वज़ीर आज़म, मैं आपका तमाम मसाइल का हल निकाल दूंगा। अब मुझे बनाए वज़ीर आज़म और गुर्बत ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा, हर किसी को रोज़गार मिलेगा। मगर मैंने एक पूरा का बाकायदा एंड इट बी वेरी हेल्पफुल अगर लोग मेरे तकरीरी पे सिर्फ नहीं या स्टेटमेंट्स सिर्फ नहीं, वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा ज़रा पढ़े, 3-4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। उसमें ना सिर्फ हमारा जो मंसूबे हम करना चाहते हैं मगर हम किस तरीके से इनको फंड करना चाहते हैं वो भी मौजूद है। हमने अपने मंशूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ये जो अवामी मुआशी मुआहिदा है ये मैं समझता हूँ अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, वैसे 4 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और हमारे नज़र से मौसमी तब्दीली, इन तमाम इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। वैसे तो आपकी मंशूर में एक बहुत सी एरियाज कवर होते हैं मगर इस वक्त जो अवाम के सबसे प्रेसिंग कंसर्न्स हैं वो ये है, हर नुकात जो जिसका मैंने जिक्र किया इस पे हमने किसी न किसी सूरत पे सिंध में या अमल दरामद शुरू किया है या पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इट इज़ नॉट कि अगर मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं मुल्क भर में
30 लाख घर बनाऊंगा तो मैंने सिंध में 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उन घर की खवातीन को मालिकाना हुकूक दे रहा हूँ। अगर सिंध में मैं 20 लाख घर बना सकता हूँ तो इतना भी एम्बिशियस प्लान नहीं है कि मैं पूरा पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाऊं। इस तरीके से हम ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं मगर साथ साथ हम women's empowerment भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि the mansuba that is happening in Sindh is the largest asset transfer in a generation। और यही तरीका है कि हम गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं कि गरीब तरीन लोगों को इस किस्म के एसेट दिलवा के सपोर्ट दिलवा के गुर्बत से निकालें। ठीक, इंटेंट, एजेंडा, प्लान, एवरीथिंग इज देयर, बट जाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वफाक के अंदर हुकूमत चाहिए मेनली अपनी तमाम चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए। बिलावल साहब, वो कहते हैं ना फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली गुड। ज़रा आप थोड़ी सियासत पर बात हो जाए। आई नो थोड़ी सी उसमें क्रूड रियलिटीज़ भी आ जाती है, बट आई वांट टू pitch them before you, but first of all आपकी उम्मीद क्या है, कितनी नशिस्तें जीत पाएंगे आप? जारी बात है पंजाब बड़ा पिवटल रोल प्ले करता है और मुस्लिम लीग नून कहती है जी हम 100 सीटें पंजाब से निकालेंगे और बाकियों को मिला के तो हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। आपको क्या उम्मीद है अपनी जमात से? तो जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, आपको याद होगा कि शायद 25 एक्चुअली बाई इलेक्शंस थे इसी पंजाब में, जिसके बारे में यही नून लीग कहते थे कि 20 तो हमारे जेब में है, 5 में मुकाबला होगा। और फिर आपने देखा किस तरीके से उनका सफाया हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन दिसंबर से चल रहा है। मैं पख्तूनख्वा में 10 कन्वेंशंस करके आया हूँ। मैं पंजाब में गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, रहीम यार खान हो, आज मैं मुजफ्फरगढ़ में अड्डू में मौजूद हूँ, क्वेटा हो, नसीराबाद हो, सिंध के मुख्तलिफ अजला हो। मैं अपने पैगाम के साथ, मंजूर के साथ अवाम के पास जा रहा हूँ और आधा कैंपेन मेरा रहता है। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, अक्सरियत जो पाकिस्तान की अवाम है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई शख्स उनका चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इंशाअल्लाह ताला वो पीपल्स पार्टी के साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। नॉट सिर्फ जो एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं मगर जो अपने हैसियत में सियासतदान हैं, अपने वोट बैंक हैं, वो इलेक्शंस में हिस्से ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे, हम हुकूमत लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ हम ये हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंस का कहा, आई कम टू दैट, बट आप यू स्टिल नॉट गिविंग मी अ फिगर। आपको होता है ना, कोई वर्कआउट किया होता है, यू आर चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपको अंदाजा तो होगा कि यार पंजाब में इतनी हल्के हमारे तगड़े हैं, इतनी सीटें निकाल लेंगे। आप खुद लाहौर एन 127 से लड़े हैं, बाय द वे उस हल्के के अंदर मैं खुद भी गया था, बट कोई सेंस तो होती है, एनी नंबर दैट कम्स इनटू योर माइंड कि यार ये पंजाब से इस दफा we'll be able to get this number? हाँ, हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। हमें उम्मीद है, हम अभी से राब्ते में है बहुत से कैंडिडेट से जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। ये जो 172 का फिगर है, ये इंडिपेंडेंस के साथ है, यानी मुस्लिम लीग नून के साथ आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिल्कुल भी किसी भी कोलिशन में नहीं जाएंगे? मैंने कल भी किसी इंटरव्यू पे कहा था, अंग्रेजी में एक कहावत है कि फूल मी वंस shame on you, fool me twice, shame on me। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इनके साथ चलूं, और वो इसलिए कि मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनका इरादा ये है कि जैसे वो पुरानी सियासत जो वो करते आ रहे हैं, उन्होंने वही सियासत करना है। सियासत को उन्होंने अब सियासत नहीं छोड़ा, ये ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के मसाइल हल करे। मैं अगर किसी के साथ हुकूमत बनाऊँ तो मैं चाहूँगा कि हम मिलकर अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉस रोड्स एट द मोमेंट
We're facing a perfect storm of challenges. एक तरफ एक मुआशी बहरान जो हमने ऐसे हमारा तारीख में ऐसे मुआशी बहरान नहीं देखा, दूसरा दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं. The geopolitics of our region is getting increasingly complicated. मौसमी तब्दीली की वजह से या हम कभी कोई सैलाब में डूब रहे हैं या इंतहा ये ड्राउट का सामना करना पड़ रहा है. इन क्राइसिस को हमें फेस करने के लिए एक सीरियस और ज़िम्मेदार हुकूमत चाहिए जो कि वो 24 घंटे जो दिन में है वो पूरे टाइम को अपने खिदमत करने में, आवाम के मसाइल हल करने में गुजारे, ना कि वो अपने आप के अपने केसेस ख़त्म करें या अपने सियासी मुखालिफिन पे केसेस दिलवाए. मैंने ये देखा कि पिछले 18 महीने में काश हम सिर्फ खिदमत में और आवाम के मसाइल हल करने में फ़ोकस करते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन कोई अलग होता.